So it's a unit used for counting. Counting. So you've got lots of units for counting. TK, for example, some people use dozens to count things. TK, for example, if you're going to the vegetable market, you'll be using that very often. TK. Some use this term hundreds. You've got billions. TK. All these are words that are used for counting, and so they're simply units for counting. And mole is just another unit for counting. TK, just like dozens, hundreds, billions, they represent a quantity. Now, why do you use units? Okay, units, Joanna, they are easier to communicate. For example, telling someone, okay, there is $2 billion in a company, okay? That's easy, okay? That's easier to communicate. Telling someone the actual number is this one. I mean, it's way more time consuming to communicate that number. It's a big number. So which is why you start using these terms. I mean, communicating the whole number, that's difficult. Okay? So instead, you don't go about saying, okay, it's if the number is small, you communicate the whole number, like 24, 124, etc. Okay? Or 5127. Okay? But if the number is really big, it takes a very long time to communicate this number. 2 billion is a lot easier. So it's just your ease. I said, then the other thing is the units keep changing. If you have a small quantity, you count them in, let's say, dozens. 2 dozen means if you have 2 dozen apples, that means you've got 24 apples. Okay, so you can count things. Your unit keeps on increasing. So you've got let's say 3 million of something. Like there are 3 million cars in let's say Islamabad. So that means it's 3 followed by, I think, 6 zeros. I mean, that's the number of cars. So your unit, I mean, you're not going to count the cars in dozens. Every unit has a specific size. And so when you're counting till dozens, so probably 500 say 200 se niche hi rahoge, theek hai? You're not going to count millions of things in dozens. theek hai? Similarly, you can go up till a trillion. theek hai? I'm not sure what a trillion is, but let's say the US economy or some random country's economy is $6 trillion. So what is the number? Okay, so a trillion, I think, has probably 12 zeros. So yep, it's got 12 zeros. So that is what a trillion is. It's 1, 2, 3, 1, 2, 3, and another 1, 2, 3. So that's a huge number. So your unit keeps on changing. Okay, things that can be counted in dozens are always counted in dozens. Okay, so your unit slowly and gradually keeps changing. Just a second, did I send it? Sorry, I sent it to SN only. A second. Okay, everyone kar diya. So everything has a specific unit. Now the thing with moles is that it's just another unit, and it represents a certain quantity. A mole represents a very, very big number. Even the term trillion is very small. Okay, most of your everyday counting that does not exceed a trillion. Okay, you've probably never heard numbers that are bigger than trillions. Okay, because you're not counting things that are so many. But when you start counting atoms are in a huge, I mean, they're in a, I mean, the atoms are a lot. Like a simple table or a chair has so many atoms that it's more than the stars in the universe. So you've got a lot of atoms. So you need a very, very big number. The number is 6.02 times 10 power 23. So when you say, so it's the same as a dozen. Like if you say 1 dozen, that's 12. If you say 1 mole, that simply means 6.02 times 10 power 23. So it's a huge number because what 10 power 23 indicates is that it's 6 followed by 23 zeros. Remember, a trillion only has 12 zeros. This is almost, I mean, lengthwise, this is almost double the size of a trillion. So it's a huge, huge number, or it represents a huge number. And
because you have many atoms. And molecules. So most of the time you'll be counting atoms and molecules because they are present in a very large quantity. So everything would be counted in moles. Now the first thing is, how do you convert to unit? So for example, if you're converting a number to dozen, what do? You divide by 12 or divide it by the unit. Similarly, if you're converting dozens to the number, you multiply it by 24. Same thing over here. If you want to convert the number to million, what do? You divide by what 1 million stands for. That's 10 power 6. And the answer is you get 3. So that means it's 3 million. If you want to convert 3 million back into the number, you multiply 3 by 10 to the power 6. And the same goes for trillion. Like if you want to convert this number to the unit, you would have to divide by 10 power 12. And the same applies to moles as well. So the first formula is, like, if I want to convert a number to moles, I'm going to divide it by a mole. So if I want to convert a number, so I have a number of particles, that's the actual number. And I want to find out what's the value in terms of moles. So I'm going to divide by 6.02 times 10 power 23. And this is known as the Avogadro's number. That's known as a Avogadro's number or constant. Okay, so it's exactly the same. Converting a number to dozens, you divide by 12. Converting a number to moles, you divide by 6.02 times 10 power 23. That's it. Okay, is this clear, the formula? So one clear? Vasta? Yes, sir. ठीक है. अच्छा तो पहले जल्दी से ना कुछ ये कर दो कि if I give you a number converted into moles, like if I give you a number that I have 10.2 times 10 power 22 molecules of Cl2. Now remember, it's much harder to molecules. ठीक है, molecule लिखना था एक second. So this was molecules of Cl2. So communicating this number is slightly harder, difficult. It's slightly difficult. So what you do is you convert it into moles. To convert it into moles, usually the symbol for moles is N. When you're doing your working, I mean, the unit is MOL. But the symbol that's usually used, for example, math, when you use X for the unknown, over here for moles, always when you're finding moles, a lot of times people use N. So it's 10.2 times 10 power 23, sorry, 22. And use brackets in your calculator. If you have a calculator, quickly find this out, or bring a calculator quickly, because everything from now on would be calculations. So divided by 6.02 times 10 power 23, how many moles do we get? कोई कर है? Yes, sir, कर रही हूँ. .16. अच्छा, so you're getting 3 significant figure use किया करो, तो क्या आ रहा है? 0.1? सॉरी, किसने चार्ट में भेज दिया था? 0.169. अच्छा, 0.169 moles. अच्छा, एक चीज जिनका गलत आया है, ठीक है, वो पहले एक चीज what they should do is कि हाँ 10 पर 23 नहीं, ये फिगर आउट करना सीखो कि हाउ टू ऐड ये 10 पर 22. ठीक है, एक मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेक श्योर
कैलकुलेटर्स जो होते हैं ना थोड़े डम्ब होते हैं, ठीक है, दे डोंट, यू हैव टू गिव देम क्लियर इंस्ट्रक्शंस, तभी उन्हें समझ आती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर कैलकुलेटर। अब ये डेस्कटॉप कैलकुलेटर, सो आई एम नॉट श्योर कि कितने अच्छे तरीके से काम करेगा। तो 10.2, वन सेकेंड, अच्छा यूज ब्रैकेट्स, जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो ना, यूज ब्रैकेट्स कि आपने क्लियरली उसे बताना है कि ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये जो पूरी ब्रैकेट के अंदर है, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय द थिंग दैट्स एट द बॉटम, सो इट्स गोइंग टू बी 10.2। और फिर अब पता नहीं वो 10 पावर एक्स के साथ डालते हैं, गलत हो गया। एक सेकेंड, फिर से कर लेते हैं, अगर तो ये हो जाए, एक सेकेंड। सर वो एक्स और वाई लिखा हुआ है ना, जो एक्स पावर वाई। कौन सा? ना एक्स पावर वाई नहीं, एक्स। ये ई का बटन होता है यूजली कैलकुलेटर में, ये डेस्कटॉप वाला है। एक सेकेंड, एक्सपोनेंट, हाँ एक सेकेंड, ये है मेरे ख्याल से 22 है, ब्रैकेट क्लोज, हाँ ये वही है, ठीक है। यूजली कैलकुलेटर्स, जो नॉर्मल कैलकुलेटर्स है ना, जैसा मेरे पास जो नॉर्मल है, उसके अंदर ई का बटन है, ठीक है। तो ये 10 होगा, ठीक। या ये कैलकुलेटर के ऊपर ना, अब पता नहीं नॉर्मल कैलकुलेटर की शक्ल किस तरह दिखाएं कि उसके अंदर आप लिखोगे इस चीज को ना कैलकुलेटर के अंदर, इट्स गोइंग टू बी 10.2। ई देख लेना कि ई नजर आ रहा है नीचे कहीं होता है वो, अगर नहीं है तो फिर उसको फिगर आउट करो, 10E22, ठीक है, उसको ब्रैकेट में डालो, और बॉटम के ऊपर ना देयर इज गोइंग टू बी 6.02, और उसका भी एक्सपोनेंट 23, ठीक है। इस तरह करके, जिस तरह यहाँ पे ई लिखा हुआ था ना, यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा हुआ था एक्चुअली। अच्छा, इसको आप डिवाइड करना है, तो डिवाइड का बटन बाय ब्रैकेट डालना है, ठीक है। पुट अ ब्रैकेट, आपके 6.02 एक्सपोनेंट 23, और अब मैं, हाँ ये मैंने किया, और इक्वल, तो मेरे पास वही आ रहा है 0.16। तो कैलकुलेटर के अंदर मेक श्योर यू पुट ब्रैकेट्स, उसको क्लियरली बताना है कि किस तरीके से करना है। तो आई एम गेटिंग 0.1693 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना, ठीक है, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग गलती ये करते हैं, 0.16 लिख देते हैं या 0.1 लिख लेते हैं, तीसरे पे राउंड कर देना, जो भी तीसरा नंबर आ रहा है ना यहाँ तक, डेसिमल प्लेस की मैं बात नहीं कर रहा, बस जो पहला, दूसरा और फिर द थर्ड नंबर, जस्ट राउंडेड ऑफ एट द थर्ड वन, ठीक है। तो इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी 0.169, क्योंकि आगे 4 है, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी 0.169। ये क्लियर है? आमना आप लोग करो जरा ये दोबारा, अगर कि ये आया कि नहीं आया। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। ठीक है, सर बस ठीक है, मोल्स में यही होता है। नहीं नहीं, अभी तो बहुत चीज है, ये तो मैं खाली वो कैलकुलेटर का बता रहा था। वैसे 10.23 के साथ डाला था वो ई करके, या सर इसमें ऑप्शन आता है, एक्स लिखा हुआ होता है, उस पे लिखा हुआ है, आप उसको बस डाल दो अपनी मर्जी से, 22 23 जो भी करना अच्छा है, और ठीक वो है, आराम अच्छा से आ ठीक है, जाता है। बस ये हर कैलकुलेटर में ना सीख लेना, हर कैलकुलेटर थोड़ा डिफरेंट है, जैसे मेरा डेस्कटॉप कैलकुलेटर जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज है, जी सर। अच्छा पहली चीज है कि मोल्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, एक और जल्दी से कर लो कि इफ आई हैव अनदर क्वेश्चन के आई हैव गॉट 5 times 10 power 24 atoms of silver, तो कितने मोल्स है मेरे पास? तो इट्स 5 times 10 power 24, उसको डिवाइड कर देना है 6.02 times 10 power 23। जल्दी से क्या है इसका? एट 8.305 सर, 8.305।
तो 3-1 कर लेते हैं ना, जी सही। तीसरे नंबर पे ना राउंड कर देते हैं 8.3, ठीक है 8.31। क्लियर है ये बात भी कि पहला दूसरा तीसरे पे राउंड कर दो, बात खत्म, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिमेंबर डेसिमल प्लेसेस नहीं, डेसिमल प्लेसेस होते हैं कि डेसिमल के बाद 3 नंबर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि जहां से भी नंबर आया ना वहां से बस तीसरे पे जाके राउंड कर दो। अच्छा एनीवे, सो फर्स्ट थिंग इज, जैसा आप दुकान पे अंडे लेने जाते हो, यू ऑलवेज काउंट देम इन डजन्स। जब आप एटम्स को काउंट करोगे तो दे वुड ऑलवेज बी काउंटेड इन मोल्स, हमेशा मोल्स, ठीक है। एवरी टाइम दे गोइंग टू बी यूज्ड इन, you'll use the term moles. तो एटम्स के आपके पास 2 मोल हैं, 3 मोल हैं, 4 मोल हैं, ठीक है। एवरी टाइम मोल्स वुड बी यूज्ड। अब इन मोल्स का करना क्या है, बाकी फॉर्मूलाज हम बाद में करते हैं, मोल्स एंड इक्वेशंस को लिंक अप कर देते हैं कि ये जो हम बैलेंस कर रहे थे ना इक्वेशन इतनी देर से, व्हाट डज इट एक्चुअली टेल यू? I have this reaction, I have sodium reacting with phosphoric acid and it produces salt plus H2, so Na3PO4 plus H2 gas, 2 और 6। अच्छा ये बता क्या रहा है, बैलेंसिंग क्या बता रही है, स्पेशली ये जो 6 है वो 2 है, ये 2 है और ये 3 है। ये आपको बता रहा है कि 6 सोडियम्स अगर रिएक्ट करेंगे ना तो वो जाके रिएक्ट करेंगे 2 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ, और आगे जाके जो प्रोड्यूस होंगे ना वो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे इसके सोडियम फॉस्फेट के, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोजन गैस के। तो इक्वेशन टेल्स यू द सिंपलेस्ट रेशो कि 6 सोडियम के एटम अगर उठाओगे ना और वो उनको रिएक्ट करोगे तो 2 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो इट टेल्स यू कि किस रेशो में ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और वो इसका भी रेशो बता रहे हैं कि वो आगे जाके ना ये सारे किस रेशो में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो रेशो, इट्स द रेशो कि इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है कि 6 जो है वो कितने के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 के साथ। तो मुझे बताओ इस रेशो के मुताबिक अगर मेरे पास 60 होंगे सोडियम्स, तो इस रेशो के मुताबिक आगे फॉस्फोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए रिएक्ट करने के लिए? क्या होगा, ये सिंपल रेशो है कि 6, इक्वेशन कह रही है कि 6 सोडियम्स जो है ना वो 2 फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इफ यू हैव 60 सोडियम्स तो आगे जाके फॉस्फोरिक एसिड कितने वो होने चाहिए? 20, 30, 20, कितने? 30, 20. 30? नहीं रेशो देखो ना, उसको क्रिस क्रॉस कर लो कि अगर उसमें कंफ्यूजन है कि 6 रिएक्ट्स विद 2, राइट? 6 जो है वो किस साथ रिएक्ट करें, 2 के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो के वो, अगर आपको यूनिटरी मेथड पता है कि हमें पता है 6 सोडियम ना 2 फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, 60 सोडियम होंगे तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो वो कितने होंगे, वो x कर लो, ठीक है। उसको क्रिस क्रॉस करो तो 6x इज इक्वल टू 60 टाइम्स 2, और फिर x की वैल्यू जो आएगी ना वो एंड में जाके 20 आ रही होगी, जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि 6 अगर 2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 60 जो है वो 20 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा इसी तरह आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 30 सोडियम हो तो अब जल्दी से बताओ कि आगे कितने फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रेशो? 10, 15, नहीं वो फिर से रेशो लगाओ, 6:2। हाँ 10 होगा, हाँ 10 होगा। वो कर लोगे 6 रिएक्ट्स विद 2, तो 30 कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, वो x कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू इट वुड बी 30 into 2 डिवाइडेड बाय 6, तो जो कि 10 ही आएगा, 103 आ जाएगा, ठीक है। कुछ रेशोज तो मेंटली कर सकते हो, ठीक है, सम पीपल आर गुड विद रेशोज। कुछ के लिए फिर अगर डाउट है तो बस ये यूनिटरी मेथड क्रिस क्रॉस वाला जो तरीका है ना, अगर मैथ में पढ़ा हुआ है, अज्यूमिंग सबने मैथ में पढ़ा हुआ है ये सारा कि आप रेशोज निकालते किस तरह। अच्छा उसी तरह ये रेशोज आपको सारों के पता है, खाली इनके नहीं, कि मुझे था कि अगर 60 सोडियम्स रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। इक्वेशन ये कह रही है कि 6 सोडियम्स रिएक्ट करते हैं तो 3 प्रोड्यूस होते हैं, तो 60 अगर रिएक्ट करें तो आगे जाके कितने प्रोड्यूस होंगे? 30, ठीक है, तो वो 30 तो वो 30 प्रोड्यूस होंगे क्योंकि 6:3 है,
तो 60 अगर रिएक्ट करेंगे तो आगे कितने होंगे, वो x होंगे, तो वो 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 होगा, तो वो 30 ही आएगा। तो द पॉइंट इज कि जैसे वो खाना बनाने में नहीं होता, रेशो होता है कि इतना उसमें नमक डालो, इतना उसमें आप प्याज डालो, ठीक है, वो रेशो होता है। तो वो रेशो को आप बढ़ा सकते हो कि अगर आपने ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना है तो उसको रेशो, उस रेशो वही मेंटेन रखो, ज्यादा कर दो। तो यहाँ पे भी बेसिकली केमिस्ट्री इज लाइक कुकिंग, ठीक है, यूर कुकिंग थिंग्स, ठीक है, यूर ट्राइंग टू मेक थिंग्स, कि इतना ये डालना चाहिए, इतना ये डालना चाहिए, फिर आगे जाके ये मिलेगा आपको और ये मिलेगा, आपको क्वांटिटी पता होगी कि कितना प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो सो द थिंग इज कि अगर एक का भी आपको क्वांटिटी पता है ना, तो यू कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग। एंड रिमेंबर कि हमारी जो क्वांटिटी हम मेजर करें मोल्स के अंदर, तो आप मुझे बताओ कि कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी कि अगर मेरे पास 0.15 मोल्स ऑफ सोडियम है, ठीक है, रिमेंबर काउंटिंग मोल्स में होगी, तो यहाँ पे जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी मोल्स में होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसको 0.15 ही समझो। So if I have 0.15 moles, so can you do the calculation and tell me how many moles of phosphoric acid would be needed? मतलब 6 react with 2, तो आगे जरा कैलकुलेशन करो, 0.15 मोल्स अगर होंगे तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, x के साथ 0.05. 0. 0.05. अच्छा, so you're getting 0.05 moles. So that's what your ratio is in this case. इसी तरह you can find the moles of this. I mean, this is 2:2. That means कि whatever the moles here, the same. I mean, it's the same ratio, right? So if you've got 0.05 moles, तो इसके भी 0.05 moles ही होंगे. Clear? Remember, you can use any two ratios. There are 4 ratios given. They're all interlinked. Okay, so you could use any two ratios. So if you know the moles of phosphoric acid, the moles of sodium phosphate would be exactly the same because it's 2:2. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. तो आगे बताओ कि इसके मोल्स कितने होंगे। अब इसके मोल्स निकाले ना, तो आप किसी के साथ भी रेशो लगा सकते हो। इसके साथ लगा लो कि 6 जो है वो 6 प्रोड्यूस 3, 0.15 would produce how much? That's x. Yeah, you can use ratios with this one. Okay, 2 produces 3, like 2, इनका रेशो 2 3 है, ठीक है, तो 0.05. If this is 0.05, what would this be? Can anyone tell me what the value is going to be for this one? Sure, 0.075. Point? 0.05. ठीक है। अब पूरा मोल्स का जो क्वेश्चन है ना, वो बाकी फॉर्मूला हम बाद में करेंगे, लेकिन वो सुभान आप कह रहे थे ना, मेनली मोल्स ये चीज है कि आपको इक्वेशन में ना किसी एक की क्वांटिटी पता लग गई है ना, जैसे वो खाना बना रहे हो, आपको रेसिपी पता है कि ये इतना डालना है, इतना डालना है, लेकिन एक की क्वांटिटी आपको पता लग गई ना, यू कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग बाय जस्ट यूजिंग रेशियोस। कि अगर आपको इसके मोल्स पता लग गए ना कि इसकी कितनी क्वांटिटी यूज होनी है, तो रेशियो लगाते हुए यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो एक ना वो असाइनमेंट में दे देता हूँ, वो एक इक्वेशंस, मैं रैंडम केमिस्ट्री की इक्वेशंस जरा कॉपी कर लूँ, उसको फिर मैं, just give me 1 second. अच्छा, पहले से अगर वो बैलेंस्ड हो, सर एसिड बेसिस और एल्कली के वो भेज दीजिएगा लिंक। हाँ ठीक है, वो भी मैं भेज रहा हूँ। एक सेकेंड, एक तो क्या मसला है, कोई बैलेंस सर्च कर लेना बैलेंस इक्वेशंस। नहीं, मैंने सर्च वही किया हुआ है, जिसमें क्या ये आ गया। चलो मेरे ख्याल से ये तो इनसे काम चला लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मैं बस इधर एक सेकेंड बना लूँ ताकि वो समझ भी आ जाए कि क्या करना है। किधर चला गया? अच्छा, ये इसमें ना मैं एक के मोल्स बता रहा हूँ, आप रेशियो लगाते हुए ना बाकी सारों के मोल्स निकालो कि क्या है बाकियों के मोल्स ना, ठीक है। कि लेट्स से इधर मैं लिखता जा रहा हूँ कि आई हैव, इसके मेरे पास 0.1 मोल्स है,
ठीक है, बाकी सारों के मोल्स निकालो इक्वेशन में कि O2 कितना चाहिए और NO कितना प्रोड्यूस होगा। इसके मैं लिख देता हूँ कि आई हैव 2 मोल्स, इसके 0.3 मोल्स। ठीक है, रैंडमली इसके मतलब कि सर आप सब मोल्स सब एलिमेंट्स के एक एक मोल बता देंगे और फिर हम खुद निकालते जाए हाँ बाकी उस आगे इक्वेशन हाँ उस इक्वेशन में रेशो लगा के ना बाकियों के मोल्स फिगर आउट कर लोगे, बाकियों के क्या होंगे। ठीक है, का। जी सर ठीक है। तो इसमें ज्यादातर वैसे 1:1 ही चल रहा है, तो उसका मतलब है सेम होगा। ये कर लेते हैं 0.4 मोल्स। बस ये करो, ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ। हमजा बिल्कुल ठीक है, वो नहीं, एक सेकेंड हमजा, जस्ट 1 सेकेंड। O2 2NO ऑल, नहीं NO के मोल्स डबल होंगे क्योंकि 1:2 है। हमजा इज दिस क्लियर? देयर इज 2 ओवर हियर। तो मैं पहला So isn't it N2 and O2? That's why 1, 2 and O be the नहीं same. नहीं this आगे वाला देखो, कोफिशिएंट देखो, वो तो फॉर्मूले के अंदर दे 2 ends। हाँ Oh yes, okay, sir. Okay, sir. ठीक है, Right. चल ठीक है, आई एम पोस्टिंग दिस और मैं वो लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, दोनों सेंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ इसको, मैं असाइनमेंट बना के पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एवरीवन ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लिंक में भेजो ग्रुप में। ठीक है, ओके टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।